Good morning, students. This is Sintu Kumar, a teacher of English. You are welcome on my YouTube channel. Now, I have taught in two videos with motivations. Today, I will also start with one quotations. Quotation is that real happiness doesn't lie in success. Real happiness doesn't lie in success, money, fame, but it within real happiness lies in gratitude. It means totally, I will make you understand इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीन्स वो अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं वो व्यक्ति जिसके पास पैसा है जो अपने जीवन में सक्सेस हो चुके हैं या फिर वो फेम बना चुके हैं तो वो खुश चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैं खुश हूँ बट नहीं और रियल हैप्पीनेस लाइज इन ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मीन्स व्हाट ग्रेटिट्यूड मीन्स आपके व्यवहार आपके बोलने के तरीका आप दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं किस तरह से बोलते हैं एक ग्रेटिट्यूड का मीनिंग होता है तो तब हम समझें कि आप अपने जीवन में खुश हैं सो थैंक यू मैं आज आप लोगों को टुडे आई विल टोटली टीच यू other word what is the other word because I have uploaded 3 videos and now I am in journey basic of English after completing the basic of English i will I will be live and I will become about the syllabus and definitely I will means in sequence way I will teach you what is past of a speech means first I will teach you first past of a speech and many other topics of the grammar recent motive question type active degree question type these types of grammar I will teach you so today I will teach you one basic thing is that other word what is other word simply I will make him understand easily and speak I will speak as well as Hindi and English both because most of the students complain me sir you are teaching English and totally you are speaking Hindi it's not good oh I know already but I understand your feelings each and everything I am understanding your feelings if you don't means most of the students thought that I didn't know how to speak English no I know how to speak English but I better make you understand it's my compulsion to speak Hindi. So today I will totally teach you as well as Hindi and English both. Thank you. Now look here. Other word. What is other word? Means it is a part of a structure. Means other word means it is constitutes 3 things. First, manner. Second one is place. And third one is time. What is manner, what is place, what is time? Now I will make you understand. So look here and try to understand. I request all the students, please see my complete video. Then you are understand completely. Otherwise, you won't be understand completely. And if you see my video till end, I promise you, you will understand completely and you will create a concept of the other word. So look here, what is the manner? Manner, place and time. Now, मैं इसको समझने के लिए फिर से मैं एक स्ट्रक्चर का उपयोग कर रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड ये दुनिया का कोई भी सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पे लिखा रहता है बच्चे को टीचर पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड बट मैं पढ़ाना चाहूंगा आपको अदर वर्ड कि अदर वर्ड होते क्या है बहुत सारे बच्चे यहीं तक पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट तक पढ़ के छोड़ देते हैं मैंने आई ask most of the students because I am a teacher of CBSE school and there I ask most of the students what is the other word completely reply I don't know sir means what why you don't know what is the reason behind it most of the students don't know why so today I will totally
try to make him understand what is the other word. Other word means लुक हियर, मैंने आपको पढ़ाया कि ये थ्री थिंग्स कंसिस्ट करेंगे। पहला होगा मैनर, प्लेस एंड टाइम। इसको हम लोग इंग्लिश में एमपीटी ऑर्डर कहते हैं। एमपीटी ऑर्डर मीन्स मैनर, प्लेस एंड टाइम। एम का मतलब हो गया मैनर, एम मीन्स मैनर, टीम टीम इज प्लेस एंड टीम इज टाइम। इसको आप याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सो अदर वर्ड में मैनर आएंगे, प्लेस आएंगे और टाइम आएंगे। तो मैनर को आप कोई सर सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे कि मैनर है कि प्लेस है कि टाइम है? यस, डेफिनेटली आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सो मैनर इट रेज विद द क्वेश्चंस। इससे मैनर को समझने के लिए क्वेश्चंस बनेगा हाउ से। वंस अगेन, बिकॉज आई हैव टॉट इन ऑब्जेक्ट इट रिलेटेड टू द क्वेश्चंस व्हाट एंड होम। वहां पर मैंने पढ़ाया था आपको कि व्हाट या होम से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्ट होने के लिए। आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैनर होने के लिए आपको हाउ से क्वेश्चन होगा, प्लेस होने के लिए क्वेश्चंस वेयर से बनेंगे एंड टाइम होने के लिए क्वेश्चंस व्हेन से बनेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल एंड आई विल अंडरस्टैंड सेपरेटली। ओके, मैं मैनर को समझता हूं पहले कि व्हाट इज मैनर, मैनर होते क्या है। तो मैंने बताया कि इट इज रिलेटेड टू हाउ। ये किससे रिलेटेड है? हाउ से। ये क्वेश्चंस बनेगा हाउ से। अगर क्वेश्चंस हाउ से बनेंगे तो मैं कहूंगा कि एक सेंटेंस में अदर वर्ड आया है और अदर वर्ड में क्या है तो मैनर है टोटली। नाउ लेट्स विथ एग्जांपल्स। शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल। देन मैं अब इसका क्वेश्चंस बना के देखूंगा कि किसका क्वेश्चंस बन क्या रहा है। तो वह कैसी दिखती है? तो बोलता है कि क्या दिखती है। आई हैवंट लिसन टू एनीवन। वह क्या दिखती है, इट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस। वह कैसी दिखती है, इट्स एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस। सो हाउ डज शी लुक? दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ दिस आंसर। सो है क्वेश्चन रेज विथ हाउ। यह क्वेश्चन बन रहा हाउ से, तो हम समझेंगे कि एक आने वाले मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो आने वाला मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड होंगे। और ये हो गया अदर वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है हाउ से, ये हो जाएगा माइनर। ये क्या हो जाएंगे? माइनर। ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर माइनर means that, and here also I have written and you can come here, it related with how, ये related to how। अगर कोई भी क्वेश्चन how से बनता है तो वो मैनर होता है। नाउ आई विल अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल। हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि मैनर क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, शी राइट्स नीटली। अब यहाँ पे कहता है कि वह साफ साफ लिखती है। तो इसका आंसर अगर पूछा जाए कि वह क्या लिखती है, once again it's a wrong sentence। वह कैसे लिखती है, it's absolutely right sentence। So once again questions, how does she write? यहाँ पे क्वेश्चंस how से बन रहा है तो ये आपका नीटली, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये अदर वर्ड हो जाएंगे और अदर वर्ड में क्या हो जाएंगे तो माइनर, क्योंकि क्वेश्चंस क्या से बन रहा है? हाउ से बन रहा है। सो मैं आप समझता हूँ कि आपको अदर वर्ड में माइनर समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप वंस अगेन वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं साफ लिखा हूँ कि अदर वर्ड में माइनर होने के लिए हाउ से क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन हाउ से बन रहा है तो एक सेंटेंस में अदर वर्ड होगा और वो माइनर होगा, और माइनर ही इसको हम लोग आगे चल के बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ अब हम लोग चलेंगे
अब हम लोग समझेंगे प्लेस। प्लेस होने के लिए इस वेयर से क्वेश्चन बनना चाहिए। इसको अगर नहीं लिखें तो इट इज रिलेटेड टू वेयर। वेयर से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, इट इज रिलेटेड टू वेयर। इसको हम लोग प्लेस को एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। आगे मैं बता दूंगा। नाउ मैं आप लोग समझते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स। राम इज गोइंग टू मार्केट। अब मैं इसका क्वेश्चंस बनाऊंगा। वेयर इज राम गोइंग? लुक हियर, वेयर इज राम गोइंग। मैं इसका क्वेश्चंस अगर बनाया तो इसका क्वेश्चंस बना वेयर से। तो वेयर से बनने वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर वहां पे आप बोल सकते हैं, नहीं होता ही है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो वेयर से क्वेश्चंस बन रहा है, इसीलिए आने वाला ये जो मार्केट होगा एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ अनदर एग्जांपल। You are coming from Kolkata. So also read the question. Also हम लोग क्वेश्चंस बना के देखेंगे कि क्वेश्चन किससे बन रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि वह कोलकाता, आप कोलकाता से आ रहे हैं, तो बोले कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं, तो कोलकाता एक प्लेस भी है। अब एक यहाँ पे कॉमन सेंस भी काम करता है आपको कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहे हैं। कोलकाता अगर दिया हुआ है तो एक कहाँ एक प्लेस की दर्शाता है। तो मैं ऐसा क्वेश्चंस बना के देखूंगा। वेयर, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। या क्वेश्चन वाला फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, वेयर। सो आने वाला ए मेन वर्ब के बाद एक कोलकाता क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आपको अब मैं समझता हूँ कि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस भी समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन वेयर से बनना चाहिए। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू डूइंग। सो दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कंसिस्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस तरह के सेंटेंस जिससे क्वेश्चन वेयर से बनता है वो एक अपने पास एडवर्ब ऑफ प्लेस रखता है। मैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग अब समझेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, it is related to when, it is related to when, क्वेश्चंस when से बनेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। एग्जांपल से हम समझते हैं। She gets up early, she gets up early in the morning at 5 o'clock। इस एग्जांपल को देखिए। he gets up early in the morning at 5 o'clock। ये in the morning at 5 o'clock कब उठती है, in the morning at 5 o'clock ये सुबह का 5 बजे उठती है। कब, when क्वेश्चन अगर करते हैं तो when does she get up, when does she get up और कब उठती है, तो सुबह के 5 बजे उठती है। यानी क्वेश्चन टोटली यहाँ when से बन रहा है। तो एक when से बनने वाला क्वेश्चन वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो ये टोटली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है जो अदर वर्ड का एक पार्ट है। इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं जिसका क्वेश्चन when से बनता हो, इसका क्वेश्चन when से बनता हो। जैसे she is
शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड टुडे। तो इसमें क्वेश्चंस बना के देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह के आ रहे हैं, क्या बना रही है और कब बना रही है। तो आज जो खाना बना रही है तो कब, व्हेन, तो खाना कब बना रही है तो आज बना रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस व्हेन से बन रहा है तो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस बना है व्हेन से। तो दोस्त बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अदर वर्ड क्या होते हैं और अदर वर्ड में क्या क्या आते हैं। तो मैं वंस आई वांट वंस अगेन क्विक रिवीजन, मैनर, प्लेस एंड टाइम, जिसको हम लोग इंग्लिश में एमपीटी ऑर्डर कहते हैं। तो आपको एमपीटी ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि अदर वर्ड में क्या क्या होते हैं, मैनर होते हैं, प्लेस होते हैं और टाइम होते हैं। तो आप समझ चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक करें, जिससे कि एक मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो और मैं इससे अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल से मैं अगले वीडियो को बना सकूं। थैंक यू।